Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start the new reader. The name of the reader is, yes, The Railway Children. So hope you will like the reader. So we are going to start the new reader, and who is the author of this reader? Edith Nesbit. She was an English author who wrote this novel. Okay, so let's start. Chapter 1. This is chapter number 1. They were not railway children at first. वो क्या थे? वो पहले रेलवे चिल्ड्रन नहीं थे. कौन नहीं थे? To whom we are talking about, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. Okay, as you know, the name of the reader is the railway children. They lived with their mother and father in a beautiful red brick home in London. Where they lived? They lived in a beautiful red brick home in London. Roberta, the oldest, was a very sweet child. Everybody called her Bobby. Peter, the middle child, wanted to be an engineer when he grew up. Who was the elder sister? It was Roberta, and people called her Bobby. And Peter was the middle child, okay? And he wanted to become an engineer when he grew up. Grew up. The youngest child, Phyllis, was always trying to be good, but was always a bit clumsy. अब सबसे छोटी सिस्टर कौन सी है? फिलिस है. वो हमेशा से अच्छा करने की कोशिश करती थी, but was always a bit clumsy. Clumsy means things not go in a smooth or in a straight way. Something happens wrong and it offend people. कुछ ऐसा हो जाता था जिससे लोगों को गुस्सा आता था. यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो रेलवे चिल्ड्रन थे वो रेलवे चिल्ड्रन नहीं थे, बट दे लिव्ड इन अ रेड ब्रिक होम. वो एक खूबसूरत घर में रहते थे, रेड ब्रिक होम में. और वो कहाँ पे था? लंदन में था. अब जिन रेलवे चिल्ड्रन की बात हो रही है वो कितने चिल्ड्रन हैं? 3. ओके, रॉबर्टा, पीटर एंड फिलिस. ओके, ये सिबलिंग्स में सबसे एल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट वन वाज रॉबर्टा, एंड शी वाज वेरी स्वीट चाइल्ड, एंड people called her Bobby. And who is the middle child? Middle child is their brother. वो उनका भाई है. And what his name? His name is Peter. And the Phyllis is the youngest one, who always trying to be good but was always a bit clumsy. फिलिस अच्छी है, वो सबसे छोटी है, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, बट सम टाइम उससे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है. ओके, जिससे लोगों को गुस्सा आता है, या फिर कुछ ओवर उससे जो भी वो करती है तो वो एक अच्छा वो नहीं होता. उससे काम जो है वो उसमें कुछ स्मूथ वे में नहीं जाता, कुछ ना कुछ उससे रॉन्ग हो जाता है. ठीक है. Peter's favorite toy was a train engine. He loved it more than anything else. Okay, what was Peter's favorite toy? It was a train engine. He loved it more than anything else. One day, however, his toy engine broke, and Peter was very sad. अब क्या हुआ कि उसका एक दिन जो रेलवे इंजन था, जो उसका ट्रेन इंजन क्या था, उसका फेवरेट टॉय था. एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत अच्छा लगता था, वो टूट गया. वो क्या था? उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास था. डोंट वरी माई डियर, मदर टोल्ड पीटर, फादर विल फिक्स योर टॉय इंजन व्हेन ही कम्स होम नाइट टू नाइट. उसकी मदर कहती हैं कि परेशान मत हो पीटर, आपके बाबा जब रात को आएंगे तो ये इसको ठीक कर देंगे. ओके. इन द इवनिंग फादर अराइव्ड एंड पीटर रैन स्ट्रेट टू हिम. ओ फादर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फिक्स माई टॉय इंजन? पीटर आस्क राइट अवे. अब शाम को क्या होता है कि जैसे ही उसके पापा घर आते हैं, पीटर भाग के उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरा टॉय इंजन ख़राब हो गया है, क्या आप इसको ठीक करने में मेरी मदद करेंगे? टॉय इंजन फिक्स का मतलब होता है ठीक करना. ओके. Father said while looking at the engine, of course I can help you. Let us wait until Saturday afternoon and we will fix that engine together. अब उसके बाबा क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स. लेके उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा इंजन को, उन्होंने इंजन को देखते हुए कहा कि यस ऑफ कोर्स मैं करूँगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन हम सैटरडे आफ्टरनून का वेट करते हैं. वी विल फिक्स द इंजन टुगेदर. तब हम लोग इसको मिल के फिक्स करेंगे. Then suddenly there was a knock on the door. Ruth, the housemaid, answered the door.
Who answered the door? Ruth, the housemaid, answered the door and told father that two gentlemen wanted to speak with him. और उन्होंने क्या कहा कि दो आदमी आए हैं, वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं. Father went to speak to the gentleman, and after a while Ruth returned and called mother into the study. The children were very curious. They heard the gentleman talking with father and mother. Then they heard the sound of boots walking down the steps and out of the front door. अच्छा, अब क्या होता है? Father went to speak to the children. बाबा जाते हैं to the gentleman and उनसे बात करने के लिए जाते हैं जो दो आदमी आते हैं, ठीक है. रुथ रिटर्न एंड कॉल्ड मदर. वो उसकी रुथ चाहती है, जिनकी हाउस मेड है, वो उनकी मदर को बुलाती है. चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मीन्स दे वांट टू नो, मुतजस्सिस होते हैं. ओके, दे हर्ड द जेंटलमैन टॉकिंग. वो सुनते हैं कि वो उनसे उनके फादर और मदर से कोई बात करते हैं, और फिर उसके थोड़ी देर बाद उनके जो शूज़ की आवाज़ें हैं वो आती हैं. वो नीचे की तरफ आते हैं और वहाँ से गुजर जाते हैं. ओके, A little later, mother came into the room. She was very pale and her eyes were red. थोड़ी देर गुजरती है तो मामा उनकी जो होती हैं वो रूम से वापस आती हैं और वो बहुत ज़्यादा पीली हो रही होती हैं और उनकी आंखें रेड होती हैं. इट्स बेड टाइम चिल्ड्रन, शी सैड. रुथ विल पुट यू टू बेड, बट you promised we could stay up late tonight with father, said Peter. अब क्या होता है कि उनकी मदर कहती है इट्स टाइम फॉर बेड, बट जो रुथ आपको जो है वो बेड तक पहुंचा देगी. बट आगे से कौन कहता है? पीटर कहता है कि आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि हम बाबा के साथ लेट तक जागेंगे या लेट तक होंगे. Father had to go away. Father had to go away on business, said mother. Come darlings, go at once. अब वो क्या कहती है कि बाबा को किसी बिजनेस के काम से जाना पड़ गया आपके फादर को, आप आए और चले, एक दफ़ा चले. The three children were wondering that what was the matter, but they kissed her. Mother kissed her and went to sleep. Mother looked very sad and they didn't want to upset her more. अब क्या हुआ कि जो तीनों बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी मामा को किस किया और सोने के लिए चले गए. मदर लुक्ड वेरी सैड. उनकी मामा बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और वो उनको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे. क्या आप भी ऐसे ही करते हैं कि जब आपके पेरेंट्स सैड हों तो आप उनको परेशान नहीं करते? या कभी आपने नोटिस किया है कि आपके पेरेंट्स परेशान हैं तो अब आपको उनसे किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं करनी चाहिए, या कोई भी ऐसी बात हो जिसको आपको बार बार रिपीट ना करें ताकि वो परेशान ना हो? अगर आपने नोटिस नहीं किया, so you have to notice it, start noticing from today. Okay, so come to the next page. The next day mother was out all day until 7 in the evening. When she had a cup of tea, she said, my darling, I want to tell you something. अगले दिन क्या होता है कि उनकी मदर फुल डे घर से बाहर होती है. कब आती है वो? 7 o'clock आती है इवनिंग में. जब उसके हाथ में चाय होती है वो अपने बच्चों से कहती है कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ. दोज मैन लास्ट नाइट डिड ब्रिंग वेरी बैड न्यूज़ एंड फादर हैज़ टू बी अवे फॉर सम टाइम. कहते हैं कि जो उस दिन वो आदमी आए थे वो एक बहुत बुरी खबर लाए थे और इसीलिए हम बाबा को उनके साथ जाना पड़ा और वो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रहेंगे. I am very worried about it and I want you all to help me and not make things harder for me. वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब मिलके मेरी मदद करो, चीज़ों को मेरे लिए मुश्किल नहीं बनाओ. The children agreed because they did not want to see mother looking so sad. वो रजामंद हो गए क्योंकि वो जानते थे और वो नहीं चाहते थे. बिकॉज दे डोंट वांट मतलब कि वो नहीं चाहते थे अपनी माँ को मज़ीद परेशान करना. द डे पास्ट एंड मदर वॉज ऑलवेज आउट. दिन गुजर गए और माँ हमेशा बाहर होती थी. रुथ had to leave and Aunt Emma came to help out at home. जो रुथ थी और उनकी आंट एमा थी वो मिल के घर को काम करती थी या उनकी जो मिल के घर संभालती थी. आंट एमा जो है वो आई थी उनकी हेल्प करने के लिए. शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक हर. टू होम चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक? आंट एमा. Who was strict in the story? Aunt Emma was very strict, so they didn't spend a lot of time with her. तो वो उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते थे. Why? Because she was very strict. Okay. Then one day mother announced to the children that they would be moving to a new house.
एक दिन उनकी मामा ने क्या अनाउंस किया कि हम लोग दूसरे घर जा रहे हैं. ओके, माई डियर, एवरीथिंग इज सेटल्ड, वी आर गोइंग टू लीव दिस हाउस एंड गो लिव इन द कंट्री, शी टोल्ड देम. वो कहती है कि बच्चों सब कुछ सेटल हो गया है, हमें दूसरी जगह जाना है. वी हैव टू गोइंग टू लीव दिस हाउस एंड गो लिव इन द कंट्री, शी टोल्ड देम. कहती है कि हमें दूसरी जगह जाके रहना है, सब कुछ सेटल हो गया है. उसने उनको बताया. डेज ऑफ पैकिंग फॉलोड, मतलब कि पैकिंग के डेज से जो उनके जो चीज़ें थी वो दिन गुजर गए. और व्हेन एवरीथिंग वाज रेडी, जब सब कुछ रेडी हो गया, दे ऑल टुक अ कैब टू द रेलवे स्टेशन एंड आंट एमा वेव्ड गुड बाय. Here is the cab and here is the Aunt Emma and she is waving goodbye, okay? And Emma waved goodbye to them. The children were quite sad to leave their home in London. Did the children were happy? No, they were very sad. Children were happy. Do the children were happy? No, they were very sad, okay? But they were also very excited about their new life in the country. लेकिन वो खुश थे कि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए एक न्यू लाइफ होगी. तो यहाँ पे जो आज तक अभी तक हमने जो रेलवे चिल्ड्रन पढ़ा है, इसमें अगर आपसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन पूछी जाए तो और आपसे पूछा जाए कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, सो यू कैन डिस्क्राइब दैट इन दिस पिक्चर. और एवरी मेम्बर ऑफ द फैमिली इज़ वेरी हैप्पी and the Peter's father is examining her toy engine. But in this picture, Aunt Emma is saying goodbye to them. Okay. सो यहाँ तक क्या होता है कि जो रेलवे चिल्ड्रन हैं वो पहले रेलवे चिल्ड्रन नहीं होते, वो एक ब्रेक होम में रह रहे होते हैं लंदन में. फिर एक दिन क्या होता है कि उनके घर में कुछ लोग आते हैं, वो उनको उसके फादर को कुछ उससे कुछ कहते हैं जिसकी वजह से उनको जाना पड़ता है. तो उनकी मामा भी उनसे कहती है कि मुझे आपने परेशान नहीं करना. उसके बाद वो सारे मिलके कुछ पैकिंग करते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स करने के बाद वो मूव कर जाते हैं किसी और प्लेस की तरफ. अब वो जो नेक्स्ट प्लेस है उसके लिए जाने के लिए बच्चे एक्साइटेड नहीं थे, वो सैड हो रहे हैं अपने घर को छोड़ने के लिए, लेकिन वो थोड़े बहुत एक्साइटेड भी हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव टू डू द एडवेंचर्स इन द न्यू प्लेस. अब वो न्यू प्लेस में जाने के एक्साइटेड हो रहे हैं कि वो नई जगह देखेंगे, वहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा. ठीक है. और दे क्यूरियस अबाउट द न्यू प्लेस, दे वांट टू एक्सप्लोर इट. ओके. सो what will happen in the next chapter, we will read in the next chapter number 2. This is all about chapter number 1. If you like the video, please like, subscribe and share for more videos. Thank you so much.